Hey people, welcome back to the channel. Hope you're doing good, staying safe and healthy. Welcome to yet another vlog. और here we are at the parking lot. Parking lot रहेगा तो ही there is some maintenance in the bike. तो yes, आज एक अच्छा खासा बेंटली TRK का मेंटेनेंस होने वाला है. आई हैवंट डिड दिस बिफोर. बहुत सारे क्या बोलते हैं अपना यूट्यूब वीडियोस देखा, फिर थोड़े बहुत आर्टिकल्स पढ़ा है. स्टिल लिटिल नर्वस दैट वेदर आई शुड गो फॉर इट और नॉट, बट सोचा कि चलो मतलब लेट्स गिव इट अ ट्राई. सो हियर आर द इक्विपमेंट्स दैट आई हैव. सो ये है अपना पूरा सारा इक्विपमेंट्स. आई थिंक इसमें तो पता चल ही गया होगा कि दैट आई एम प्लानिंग टू चेंज द brake fluid. So I'm gonna start with the rear one first. I have किधर गया रे वो. हाँ, तो when I was seeing all the videos and articles and all stuff, so I did made couple of notes for myself so that I do not miss any of the steps. So here are all the steps that I have written for myself. तो ये हो जाएगा. And so let's see what all equipments that you need. First, though, for sure you need the brake fluid, and I am actually using the 5.1 dot wala thing. Usually for us in the sense for TRK 502X, I think it is 4. Yes, abhi pata nahi if you could see here, you can see here it is dot 4, but after a quick research, like if I found मैं यहाँ पर स्क्रीन में एक कंपैरिजन एक कंपैटिबल टेबल डाल दूँगा. Like 5.1 is compatible to which other brake fluids and all, so we can actually replace the 4 fluid with a 5.1, or in fact we can actually mix both and go for it. So वो compatible का एक image डाल दूँगा यहाँ पर, and at the same time link भी डाल दूँगा description में, so that you can read more such articles. So yeah, this is what we need, and we need a transparent hose, a smaller one with, I don't know what's the क्या हो गया पता नहीं, इसका डायमीटर कुछ रहेगा हाफ इंच ऐसा टाइप कुछ रहेगा यहाँ पर. तो दिस इज़ व्हाट वी नीड जस्ट टू मूव आउट द ओल्ड ऑयल, एंड एंड अ बॉटल, सो दैट ये पुराना ऑयल इसमें कलेक्ट हो जाए. एंड आई थिंक वी नीड ए छोटा सा पाना टाइप्स टू जस्ट open it up so that the old oil flows out. A kind of waste wet cloth, because when you remove oil and all, we should make sure the oil doesn't drops in any of this parts या फिर painting surface on, because it's highly corrosive in nature और वो पूरा paint सब निकाल देगा. So इसलिए एक wet cloth I'll be kind of covering across the क्या बोलते हो brake fluid का drum and all. Alright then, without further ado, let's get started, and guys wish me luck so that I really don't screw this up. लग तो रहा है कर लूँगा करके, but let's see how it goes. चलो start करते हैं. Alright guys, so the very first step is removing the cap of this cylinder, rear cylinder, and just to let you know कि I have covered almost like 16,000 kilometers, and rear brake set एक बार change किया था, but still I haven't changed the brake fluid as such. So that is one more reason why I'm changing it. तो बहुत सारे articles देखा कि it has to be within a year or a two, I believe, to change the brake fluids, so that it has all this viscosity and all stuff. So yeah, and if you could see the color of this, it's almost like dark and all. Even I don't know what's the how the color of the newer ones would look like. So we can also have a quick comparison of that sort. चलो ये निकल गया. I'll just keep all this safe. Yeah, the thing is I have to really fix this screw here so that मतलब ये intact रहे, हिले डुले ना. तो at least ऊपर का ये cover मैंने निकाल दिया है, which is holding the cap. Now I'll fix this again.
Okay, this is done. So before I open it, let's have the wet cloth पूरा यहाँ पर मैं फैला के रख देता हूँ. That's the thing I'm really worried about. कहाँ पर गिरे ना, स्पेशली दी इंजन के कवर के ऊपर और उसका पेंट वेंट सब निकल जाए. देखते हैं हाउ इट गोस. Okay, and definitely yes, we will have this एक रबर का कवर टाइप्स. ओके, एक रिंग है. Right, and here is where the cover is. इसमें there you go. All right, so ये था उसका मेटल कवर, एक कैप और अंदर एक छोटा सा वॉशर टाइप्स, और ये है उसका रबर पैकिंग. सो वी नीड टू मेक श्योर कि ये कैप एंड रबर शुड नॉट गेट वेट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज एक बार ब्रेक फ्लूइड में मॉइस्चर या फिर पानी में नहीं जम गया, then it will lose its potential to have an effective braking system and all. And I don't know, but yeah, here is how the old oil color looks like, and it is still in minimum का line में and all. ठीक है. Now let's get started with removing this part. So yeah, before I show you the rear वाला setup, तो यहाँ पर एक notes लिखा है. Actually front oil change का notes है, but then this is something similar to the rear one. The one thing that we have to be make sure is we need to pressurize the brake. तो यहाँ पर मुझे पीछे का जो lever है वो मुझे through 2-3 times pressurize करना है, and then I have to really hold it, and then only I have to open the the bleeder valve here, ये वाला thing. फिर उसके बाद half quarter open करना है, then the oil or the fluid will bleed out, and then I have to close the bleeder valve, and then only I have to release the क्या बोलते ब्रेक लीवर. तो मैं अपना ये वेट क्लॉथ यहाँ पर रख देता हूँ, जस्ट इन केस कुछ हो गया तो आई कैन इमीडिएटली वाइप इट आउट. और ये होस है. दिस इज़ व्हाट आई विल बी कनेक्टिंग. किधर कह रही फोकस हो जा. या दिस इज़ व्हाट आई विल बी कनेक्टिंग टू दिस पार्ट, एंड इसका एंड मैंने यहाँ पर बॉटल के अंदर डाल के रख दिया, सो दैट द ओल्ड ऑयल विल बी कलेक्टेड हियर. तो चलो इसको पहले डाल देते हैं अपन. Okay, fair enough. So as per the steps I have to like pressurize this one, so let's do that. ठीक है. एक बार प्रेशराइज करने के बाद अच्छा से प्रेशराइज करते हैं, देन यू हैव टू जस्ट होल्ड इट. ठीक है. फिर इसके बाद अपन होल्ड ना एक काम करते पैर से कर लेते हैं. दिस इज मच बेटर. दोनों हाथ फ्री हो जाएगा. हाँ, इसके बाद अपने को सिर्फ हाफ या फिर क्वार्टर ही ओपन करना है. There you go. फिर इसको टाइट करना and leave the lever. So yeah, this is what I have to do for couple of times. अभी यहाँ का देखा तो you can see थोड़ा बहुत ऑयल कम हो गया, तो we'll do the same. Then okay, बस I have to do this for a couple of times and it should be all good. थोड़ा थोड़ा मैं वेट क्लॉथ से वहाँ पर ऐसे ही पानी डाल रहा हूँ, so that just in case.
ओके, और लास्ट बार बिफोर आई रिफ्यूल इट, बिकॉज यहाँ पर थोड़ा सा और बाकी है, तो लेट्स सी। तो अभी अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर ये पुराना ऑयल पूरा यहाँ पर जमा हो गया ना हुआ। लेट्स रिफ्यूल इट विथ अ न्यू वन। तो ये अपना नया वाला, ओके, इसको 2 होल कर देते हैं। राइट, इसमें थोड़ा रिफ्यूलिंग कर देते हैं। तो अभी इसमें एक सेकेंड, थोड़ा ब्राइट, हाँ अभी इसमें देख सकते हैं दी न्यू ऑयल इज़ मोर ट्रांसपेरेंट देन दी ओल्डर वन। अगर कंपैरिजन चाहिए तो ये देखो, ये जो बॉटल में है वो पुराना ऑयल है, दिस वन, और ये जो कंटेनर में है दैट्स अ न्यू वन। सो टिल आई गेट दी न्यू ऑयल आउट, तब तक अपने को थोड़ा सा पंपिंग करके बाहर निकालना। एनीवेज न्यू ऑयल मैंने मिनिमम एंड मैक्सिमम के बीच तक लगा दिया है, और ये अपना वेट क्लॉथ जस्ट इन केस। अभी इसको ओपन करते हैं। ओके, वॉल्व क्लोज। यहाँ पर अभी भी मिनिमम में ही है, पता तो नहीं चल रहा है कलर डिफरेंस एज सच, बट let's give it a shot again for couple of times, and the good thing is एयर बबल नहीं है, वो एक अच्छा खासा प्लस पॉइंट है, नहीं तो फिर ज़्यादा टाइम लगता है इसको पूरा प्रोसेस करने के लिए। ओके, प्रेशराइज कर लिया अपन, लूज इट अप। अभी एयर बबल निकल रहा है थोड़ा बहुत, देन टाइट इट अप। सो एक काम करता हूँ, द मोमेंट आई रिलीज प्रेशर, दिस इज़ हाउ ऑटोमेटिकली इट वुड गो डाउन। अब तक मैं रिलीज़ किया नहीं, एक सेकेंड, वॉल खोल रहा हूँ अभी, 1 2 एंड 3, देखो ऐसा खोलते ही नीचे तक चला जाता है। फिर आई हैव टू जस्ट क्लोज द वॉल एंड उसके बाद रिलीज़ करना है प्रेशर को, दिस आई हैव टू डू इट। अभी थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंट ऑयल दिख रहा है मुझे यहाँ पर, ये वाला, एंड इफ़ यू कुड सी यहाँ पर भी थोड़ा ऑल एम्प्टी टाइप्स हो गया, ठीक है। तो ये अपना लास्ट सेट होगा, देन उसके बाद अपन उसको टॉप अप करके, एक काम करता हूँ पहले टॉप अप ही कर लेता हूँ, क्योंकि मिनिमम से नीचे है ना, तो आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क ऑफ एयर बबल का थिंग एंड ऑल, ठीक है। ये अपन टॉप अप करते हैं यहाँ पर, कितना क्लीन हो गया, अंदर तो ऐसा कुछ था ही नहीं है सच, मट्टी विटी टाइप्स। तो हियर यू गो, ओके राइट। अभी ये मिनिमम से ऊपर ही है, बट एनीवेज जब भी इसको मैं थोड़े बहुत 1-2 बार ये करूँगा तो उसको मिनिमम तक लेके आ जाता हूँ मैं। या इट्स बेटर टू हैव दैट एक्चुअल पाना टाइप्स, ये पाइप पाना का सब वगैरह सब सेट नहीं होगा। अभी मेरे पास था नहीं, तो आई एम काइंड ऑफ एडजस्टिंग विद दिस वन। तो वी आर ऑल गुड। यहाँ पर भी मिनिमम तक आ गया है, मिनिमम से थोड़ा, इफ़ यू कुड एक सेकेंड, तो यहाँ पर कैसा मिनिमम से थोड़ा नीचे आ गया है। इफ़ आई रिड्यूस द ब्राइटनेस एंड ऑल, यू कैन सी, उसको टॉप अप कर लूँगा, एंड ये तो पूरा सब सेट हो गया यहाँ पर। तो अभी इसको केयरफुली ये ऑयल को निकालने के लिए आई जस्ट डू दिस वन, हाँ बस और फटाक से सब पोंछ देते हैं अपन। ऑल राइट, देयर यू गो। और ये यहाँ पर पूरा बॉटल में कलेक्ट हो गया, किधर गया रे पुराना ऑयल।
सो या अगेन इफ़ यू कुड सी द डिफरेंस, ये है अपना पुराना ऑयल और जो कंटेनर सिलेंडर में है दैट्स द न्यू ऑयल. नाइस. ये इसका अंदर का जो एक रबर पैकिंग था उसको अच्छा खासा क्लीन कर लेते हैं, बिकॉज इतना टाइम बाहर था ना ये, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत मॉइस्चर विश्चर जमा होने का चांसेस है, तो उसका अच्छा खासा क्लीन कर लेते हैं. सो फाइनली हो गया रेयर ब्रेक्स का फ्लूइड चेंज. थोड़ा बहुत यहाँ पर एक सेकेंड ना. सो ये थोड़ा बहुत यहाँ पर ऑयल गिरा और इसके ऊपर एक ड्रॉप गिरा, तो जैसा गिरा यहाँ पर दिख रहा है ना, तो जैसा गिरा तो मैंने ये वेट क्लॉथ से इसको पोंछ लिया अच्छा खासा. एंड आई होप सब अच्छा पोंछ लिया रहेगा. यहाँ पर भी इमीडिएटली पोंछ दिया था ये रिम में, बाकी तो कुछ कहाँ पर गिरा नहीं, तो ये हो गया सॉर्टेड. सो स्टैंड स्टिल में ब्रेक अप्लाई किया तो दिस इज़ वर्किंग एज एक्सपेक्टेड. अगर एक बार छोटा सा एक्सप्लेन किया तो तभी पता चलेगा. सो थोड़ा डर लग ही रहा था कि कुछ एयर बबल का सीन या फिर पता नहीं, मेरे को लगा कि थोड़ा मेजर काम टाइप्स है, तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि हो पाएगा नहीं, बट हो जाएगा, हो गया. फ्रंट का मेरे को तो कॉन्फिडेंस नहीं है भाई बिल्कुल. एंड द रीज़न इज़ बिकॉज ऑफ दिस. अभी पता नहीं इसमें प्ले मिलेगा क्या नहीं. सॉरी, इस वायर, ये आई थिंक थ्रॉटल का वायर है ये, तो इसमें थोड़ा प्ले मिल गया तो फिर इसको ओपन कर सकते हैं. अभी देखो यू डोंट सी, एकदम छोटा सा गैप दिख रहा है, बट वी नीड एटलीस्ट सम गैप टू यू नो, ये थोड़ा कंटेनर का कैप बाहर निकल के देन वी हैव टू डू क्लीनिंग एंड स्टफ, बिकॉज इसमें आई एम प्रीटी श्योर कि वी हैव टू डू सर्टन क्लीनिंग्स थिंग. एंड उसके बाद वी हैव दोनों डिस्क ना यहाँ पर एंड द अदर वन, तो दोनों में वी हैव टू रिमूव इट. तो रिमूवल का कोई टेंशन नहीं, बट आई एम वरीड अबाउट दिस वन. इसका लूजन वीज़न करके फिर कर सकते हैं, बट फ़िलहाल तो नहीं. तो लेट्स से फ़िलहाल तो इसको टच नहीं करूँगा एंड आई वोंट रियली रीफिल या फिर उसको चेंज करूँगा. बट देन सोचूंगा थोड़ा कि हाउ वी कैन रियली डू इट. शुड आई लूजन दी थ्रॉटल का वो स्क्रू एंड ऑल, थ्रो दैट मुझे थोड़ा प्ले मिले एंड आई कैन ओपन दी ऊपर का कैप का कवर. एंड या एनी विच वे, सो हियर यू कैन सी. सो ये है अपना ऑयल थिंग, एकदम क्लाउडी टाइप्स हो गया पूरा, राइट. And this is the one which I changed it with Liqui-Moly brake fluid 5.1. Here is that important step. Maybe अगर चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी लेके रख लो. लीवर, सो हियर इट इज़ पंप, ओपन दी वॉल्व, ऑयल बाहर आ जाएगा, ये ब्लीडर ऑयल. ये दैट इज़ पंप इन द सेंस लीवर, ओपन दी ब्लीडर वॉल्व, फिर थोड़ा ऑयल बाहर आ जाएगा, देन यू हैव टू क्लोज इट, देन यू हैव टू रिलीज इट, द लीवर. या सो दैट आर दी 3 या फिर 4 स्टेप्स. उसके अलावा तो या कंपैटिबिलिटी देखना पड़ेगा. मैं वो स्क्रीनशॉट लगाया था ना, वो चेक कर लेना वेदर योर व्हीकल इज सुटेबल फॉर 4 और ओनली 4, या फिर यू कैन अपग्रेड इट टू 5.1 और 5 तो नहीं है शायद से, बट 5.1 यू कैन रियली डू इट. एंड लाइक आई सेड, मिक्स, यू कैन एक्चुअली मिक्स विथ 4 का डॉट एंड यू कैन गो फॉर इट. तो वेल येस, दैट्स इट गाइस. आई होप यू लाइक द वीडियो. अगर अच्छा लगा तो शेयर, कमेंट करना. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस या जो भी है, यू कैन जस्ट ड्रॉप अ मैसेज देयर. एंड येस, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, एंड मीट यू इन अ नेक्स्ट ब्लॉग.